Okay, so in this lecture we would discuss about the coronavirus and COVID, the one virus that has been the reason that for we are basically we are all are home and I am recording video here, and you might be listening this video soon. So this is due to the COVID-19 pandemic. So let's have a look and let's throw some light on the history of the coronavirus. So what has been perceived it is that it was found recently, and some says that there are the misconception regarding this virus. Some says that this virus was just created in some sort of laboratories, and especially they somehow blame sometimes China. That China was the country who created this virus. But when we look at the facts and figures, and then we clearly see this that the coronavirus was observed in 1930s. 1930, it was the first time when the coronavirus was observed, and it was in the 1940 it was seen that it caused some sort of acute respiratory disease in the respiratory tract disease in the chickens in 1940. In the humans it was first observed in 1960s, and I guess in 1968, to be more accurate, in 1968. But when I talk about dates, it could be possible that I might miss some of the date, and I might some means narrate some dates wrong. But it's not always. But the concern of point is to remember, and is to learn. So in humans it was observed in 1960s, and there are many some of means as the virus has been across 188 countries, COVID-19. So there are so many rumors about this virus going on throughout the globe. Every Tom, Dick, and Harry is just commenting on this. This is a corona. This is a way to treat. This is the way to function. You eat onion at the night, late night. The virus will get killed, and some many sort of the things are going on across the whole globe. But the point of concern is that only the group of the either virologist or immunologist who are specialized in this field can comment and can suggest the lots of things. But what we see today, a lot of people who don't know anything, actually they don't know anything about the virus, yet they are commenting and giving suggestion and giving the techniques and everything they are doing. So whatever, when it was first observed in 1968, it was not as deadly, and then according to some of the sources as per Google, it was again it was seen in China in 2000, at the end of the 2002, and up to 2004 it was over. About coronavirus, there are some researchers and some sources say there are the 20 species of the coronavirus. We are talking now about the coronavirus, not COVID-19. We are talking about coronavirus. Some says there are more than 20 species. They say there are the 30 species of coronavirus. If we consider 20 or 30 species, but after the total species of the coronavirus, only 5 species have been seen to cause some sort of problem, minimal problem in humans. Only 5 species of the coronavirus, after which only 3 species are regarded as detrimental. The means they cause the detrimental. They have the detrimental effect on the humans, and these are only 3 species out of all those species of the coronavirus. And what are those species? These are SARS, severe acute respiratory syndrome virus, coronavirus, and there is a MERS, Middle East respiratory syndrome coronavirus, and there is again SARS corona 2, severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2. And when we talk about COVID-19, it is the third type, SARS COVID coronavirus 2, and that is actually devastating and has the detrimental effect on health. It is quite serious. So अब जब हम बात करते हैं इन सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो इनसे मुराद क्या है? सेवियर का मतलब है कि जब शदीद
शदीद, सिंपली शदीद। एक्यूट हम उस चीज़ को कहते हैं कि एकदम से किसी चीज़ का होना, एकदम। रेस्पिरेटरी का ताल्लुक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, हम जो सांस लेते हैं, मतलब उसमें हमारा नाक आ गया, हमारा गला आ गया, फिर हमारा लंग्स वगैरह आ गए, वो पूरा सिस्टम। सिंड्रोम जब कलेक्शन ऑफ डिजीज़ को भी कहते हैं, और मतलब कि एक किस्म की बीमारी। तो मतलब कि ये जो कोरोना वायरस है, ये क्या क्या करता है, ये हमारे लंग्स को बेसिकली डिस्ट्रॉय करता है। और एक्यूट रेस्पिरेटरी, एक्यूट मतलब एकदम से वो अपना उसका कोई एक ऐसे होते हैं ना कि आपको अभी कुछ चीज़ होती है, कोई बीमारी होती है, तो वो काफ़ी लंबे अरसे तक वो चलती रहती है, और काफ़ी लंबे अरसे के बाद उसके डेडली इफ़ेक्ट ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। लेकिन इसमें आपको जो है उसके डेडली इफ़ेक्ट एकदम से ज़ाहिर होना शुरू होते हैं विद इन 14 to 30 डेज़। और दूसरा है कि इट इज़ सडन। और अब और हमारा जो कोविड-19 है, और जो कि हमारा जो फोकस पॉइंट भी है आज के डिस्कशन का, तो वो दैट इज़ सार्स कोरोना वायरस 2। दैट इज़ विच टाइप, अगर आप कोरोना वायरस की बात करें तो कोविड-19 इज़ विच टाइप ऑफ द कोरोना वायरस इज़ द सार्स कोरोना वायरस 2। और इसकी जो डायमीटर इसका जो है वो 50 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर है। और सार्स कोरोना वायरस 2 एक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मुख्तसरन सा कि हमारे जो जीनोम का, जो वायरस का जो जीनोम होता है, उसके मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। वो कौन सी हो सकती हैं? वो डीएनए, आरएनए हो सकती है। फिर डीएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और नेगेटिव में भी होता है कि अपना नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये होता है। और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, जैसे डीएनए में आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मकसद क्या होता है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो इसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं, लेकिन मुख्तसर आपको बताऊं कि आपका जब आरएनए किसी बॉडी के ऊपर अटैक आपका जो वायरस है जब किसी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो वो उस बॉडी को सिस्टमेटिकली एक सिग्नल भेजता है जिससे वो अपने आप को रेप्लिकेट कराता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर ये है कि वहाँ पे उसका जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो कैसे होगा। वेल, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। चलिए अब अगेन कोविड-19 के ऊपर आ जाते हैं। तो कोविड-19 अब यह है कि फैलता कैसे। तो बहुत सारी WHO की, अगर आप जाके देख लें उनकी साइट पे, बहुत सारे रिसेंट रिसर्चेस वहाँ पे अवेलेबल हैं कैसे फैलता है। लेकिन जनरली आपको बता दूँ, हाथों से कान पे हाथ लगाना, मतलब, और नाक, जो बंदा अफेक्टेड है उससे वो अपने नाक के कान पे हाथ लगाता है, फिर वो अगर किसी दूसरे बंदे को या किसी दूसरी जगह पर टच करता है तो वहाँ पे ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर विद इन सम टाइम अगर वहाँ पे कोई दूसरा बंदा जाता है और वो उस चीज़ को टच करता है, तो एक ये रूट है कि वो इनडायरेक्ट, वन ऑफ द इनडायरेक्ट रूट है जिससे कि वो कोरोना वायरस वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसे बहुत सारे वेज़ हैं। अब क्योंकि हम इतने डेप्थ में नहीं जाते हर वेज़ को अलग अलग से डिस्कस करें। स्नीजिंग भी एक वन ऑफ द मेजर वेज़ है, जिसमें जो है ना वो 1.8 मीटर्स तक ये वायरस जो है उसके ड्रॉपलेट्स, अगर उसकी रेंज में कोई बंदा आता है तो देयर आर द मोस्ट प्रोबेबल चांसेस कि वो वायरस उसको लग जाए। लेकिन और भी बहुत सारे वेज हैं जो कि उस डेप्थ में हम नहीं जाते, क्योंकि हम ये पहले टॉपिक कवर कर चुके हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड कैसे होती है, तो वो उसमें कवर हो चुका है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो आपको हम कोविड-19 के हवाले से आप बताऊँ मैं आपको कि एज ऑफ June 12, दिस इज़ अ वेरी मच, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी मच रिसेंट स्टेटिस्टिक्स अबाउट कोविड-19। एज ऑफ June 12, मोर देन 7.5 मिलियन केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। 188 मुख्तलिफ ममालिक में 7.5 मिलियन, 75 लाख केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं कोविड-19 के। और कोविड-19 की वजह से डेथ्स कितनी हो चुकी हैं अक्रॉस द ग्लोब? 4,21,000 डेथ्स अक्रॉस द होल ग्लोब। और ये नंबर जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इनिशियली ये जो वायरस है वो आइडेंटिफाई हुआ था चाइना में, और ये यहाँ पे आई थिंक मैंने मेंशन करना, आई गेस कि मैं भूल गया हूँ कि यहाँ पे मैंने वो मेंशन नहीं किया, लेकिन बता देता हूँ आपको कि इनिशियली ये जो वायरस है वो आइडेंटिफाई हुआ था चाइना में इन द नवंबर, लेट नवंबर, और दिसंबर में भी इसके काफ़ी सारे केसेस आना शुरू हो गए थे कोविड-19 के।
फिर ये अक्रॉस द ग्लोब फैलता गया एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और इस तरह से 188 ममालिक में मुकम्मल तौर पे फैल गया। और जो इसकी जो ओरिजिन थी जो कि चाइना थी, फिर एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ और बहुत सारे केसेस अमेरिका में जो है ना वो अफेक्ट होना शुरू हो गए। और अभी मेरे ख्याल से अमेरिका में 1,40,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं कोविड-19 की वजह से। स्पेन और इटली को भी इस वायरस ने बुरी तरह से हिट किया, और वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा, अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन देखें स्पेन और इटली की तो उसमें देखेंगे उस ओवरऑल पॉपुलेशन वो उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है और बड़े ममालिक के हिसाब से, लेकिन उनको इस वायरस कोविड-19 ने बहुत ही बुरे तरीके से हिट किया। तो इसका एक रीज़न कुछ ये भी कहते हैं कि वो क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस वजह से उसको इतना बुरी तरीके से हिट किया। जबकि वो जब हमारे रीजन में आया, ये जो हम सेमी एरिड रीजन है जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो मैं भी अभी तक तो इसके ऊपर इतनी इन डेप्थ स्टडीज़ नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी वो इतना डेडली यहाँ पे नहीं है। हमारे इंडिया का रीजन ले ले, पाकिस्तान का या अफ़गानिस्तान का, इवन ईरान में भी चलो उसने किया, लेकिन नॉट दैट मच डेट्रीमेंटल इफेक्ट दैट इट हैज़ कॉज्ड इन अमेरिका एंड स्पेन एंड इटली। वेल इट्स ओरिजिन वाज इन December 2019 और सॉरी November 2019 इन चाइना। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसकी सिम्टम्स कौन सी हैं, कॉमन सिम्टम्स जो कि थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेंडेमिक और ये इशू अभी चल रहा है। दिस इज़ द करंट इशू, दिस इज़ नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द डेट्स बैक के ऐसा हुआ था नहीं, दिस इशू इज़ गोइंग ऑन। सो वी नीड टू काइंडली वी जस्ट नीड टू सी सम ऑफ द बेसिक सिम्टम्स। तो अगर हमारी सराउंडिंग में भी ऐसा अगर हमें कोई बंदा मिलता है जिसमें वो सिम्टम्स हैं, तो बेहतर है कि हम प्रिकॉशंस वो जो है नेसेसरी प्रिकॉशंस लें। तो कौन सी हैं सिम्टम्स? फटीग, कोई ऐसा बंदा है कि वो थोड़ा सा चलता है और फिर एकदम से थक जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, उसको मुश्किलात होती है सांस लेने में। लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट, ये तो सिंपल है, ये आपको वैसे देख के पता नहीं चल सकता वैसे भी कि उसको क्या सूंघने में उसको सही आ रहा है या नहीं, या उसका टेस्ट वो कैसे कर रहा है। बाकी फीवर, बुखार होना, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर आपका है वो सिम्टम है। कफ मेजर सिम्टम है आपकी, और शार्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर 3 मेजर सिम्टम्स लें तो आपकी शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, बुखार और कफ खांसी, ये 3 मेजर सिम्टम्स हैं आपकी कोविड-19 की। उसके बाद इसके अलावा और कौन सी और ये फैलता कैसे है? ये ऑफन ड्रॉपलेट्स की जब कफिंग या स्नीजिंग होती है, और भी बहुत सारे अकसाम है वेज हैं जिसकी वजह से ये फैलता है। तो अभी हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि इसको मैंने ज़्यादा टाइम भी दिया है इस लेक्चर को या इस कम्युनिकेबल डिजीज़ को जब हम डिस्कस करें, तो कोविड-19 को मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए भी दिया क्योंकि दिस इज़ द रीसेंट इशू इन द बर्निंग इशू, एंड वी सम ऑफ होल पाकिस्तान और होल पूरी दुनिया का मेजर कंसर्न है इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की जा रही हैं और अभी बहुत ज़्यादा और रिसर्चेस भी होंगी, और तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन द बर्निंग टॉपिक ऑफ दिस टाइम। तो इसलिए हमने इसको इन डेप्थ टच किया। और फिर आपको ये भी लाजमी जो है ना वो जहन में रखना पड़ेगा कि इसको फिर आपने करना क्या है। इसके प्रिकॉशंस भी हैं, जनरल प्रिकॉशंस इसके हवाले से मैं बता दूं। एक तो जनरली सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से भी है, और एक तो जनरल थोड़े से इसके हवाले से कि मास्क पहनना है हमें, और हमें कोशिश करना है कि फ़ासला रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करनी है, बार बार हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करना है जब भी आप किसी चीज़ को टच करते हैं बाहर जाके और बाहर से आ रहे हैं तो, और मतलब कि कोशिश यही करनी है कि हम आइसोलेटेड रहें ताकि हम खुद को भी सेव कर सकें और हमारे घर वालों को भी। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट कोरोना वायरस। अल्लाह हाफिज़।